Good morning guys, how are you? I hope all of you will be healthy and safe. Guys, आज हम जो भी आपको सामने वीडियो पेश कर रहे हैं, मैं ला रहा हूँ आपके सामने, वो पीडीएफ फाइल में ब्लैक बोर्ड रजिस्टर के माध्यम से आपको समझाई जाती है वीडियो। प्लीज़ आप अच्छी तरीके से वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हो गया गाइज आपका इनर्शियल मास, ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल मास। इसके आधार से हम ग्रेविटेशनल मास करते हैं। इसको कैसे करते हैं? द ग्रेविटेशनल मास ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड बाय ए कॉमन बैलेंस based on the principle of movement of forces. According to the principle, when a beam is perfectly horizontal, the algebraic sum of moments of all the forces develop due masses hanging vertically on the beam. About a fixed point is zero. The balance shown in figure, देखिए फिगर में आपको शो किया हुआ है बैलेंस। ये जो बैलेंस है ये आपको फिगर में शो किया हुआ है। consist of a light but rigid metallic beam balanced on a hard central knife edge and placed on a vertical pillar. The two ends of the beam carry pens suspended on knife edge. When the balance is not in use, the beam rests on two supports projecting from the pillar. This saving knife edge from wear and tear. The beam also carries at its center a long pointer which moves on a vertical inverted scale. A plumb line is provided to level the balance by means to leveling screw at the base of the balance. Two balancing screws are also provided at the experiments of the beam for finger adjustment. In order to measure the gravitational mass of a body, the beam is raised from the rest position by turning the lever handle, and the balancing screw are so adjusted that the pointer swing equally on the two sides of the central zero mark on the ivory scale. The body is then placed on the left pen and extender weight on the right pen using forces. The weights are adjusted until the pointer swing equally on the two sides of the zero mark on the scale. The beam is now perfectly horizontal. At this stage, the gravitational force on the body is equal to the gravitational force on the standard weights. Hence, the gravitational mass of the body is equal to the mass of standard weights. तो गाइज इसमें इस तराजू की तरह होता है। ये यहाँ पर देखिए एक नाइफ होता है, चाकू होता है। चाकू की नोक पर ये जो आपके स्टैंड होते हैं ये रखे होते हैं दोनों, एंड ये दोनों पलड़े होते हैं। इसमें हम वस्तु को रख लेते हैं और दूसरी में वजन तोल के इसको हम नाप लेते हैं। तो नॉर्मल है, आप समझते होंगे। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। गाइज यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल और मैसेज कर सकते हैं। एंड प्लीज़ गाइज आपकी बहुत जल्द कॉपी चेक होने वाली है, नोटबुक को मैं चेक करने वाला हूँ। तो प्लीज़ अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। Thank you guys and take care. Guys, measurement of mass. Mass is a basic property. The mass of a body measures the quantity of matter that the body contains. It does not depend on temperature, pressure or location of the body in space. गाइज जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाया जाता है तो यह बल वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है, जबकि वस्तु स्वयं अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु का वह गुण जिसके कारण यह अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व। ये आपने डेफिनेशन पहले पढ़ रखी होगी 9th क्लास में, 9th और 10th क्लास में। इन्हीं के आधार पर हम कुछ निकाल रहे हैं, जड़ द्रव्यमान निकाल रहे हैं। जैसे पहला निकालेंगे इनर्शियल मास और दूसरा निकालेंगे ग्रेविटेशनल मास।
इनर्शियल मास हम किस तरीके से नापते हैं, कौन सी तराजू से नापते हैं, उसके लिए भी देखो ये चित्र बना हुआ है। इसके तरीके से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वो देखो, थोड़ा समझिए। द इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी कैन बी मेजर्ड बाई एन inertial. This balance consists of a wooden block and a pen joined by two flat metallic strips with their flat faces vertical. The block is clamped firmly on the top on a table. The experimental body is placed on the pen. When the pen is slightly displaced and released, the system vibrates horizontally. The period of vibration depend upon point number 1 किस पे डिपेंड करता है, उसका वाइब्रेशन सिस्टम डिपेंड किस पे करेगा, पॉइंट नंबर 1 करेगा द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द इनर्शियल बैलेंस, और पॉइंट नंबर 2 करेगा मॉलिक्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्ट्रिप्स, एंड थर्ड पॉइंट किस पे करेगा, थर्ड करेगा द टोटल मास ऑफ द पेन एंड द बॉडी प्लेस्ड ऑन इट. इट इज द फाउंड द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन. T is directly proportional to the total mass of M of the pen and the body. That is, हम कह सकते हैं T square is equal to M, T square proportional to M, और T1 square upon T2 square is equal to M1 upon M2. यहाँ पर क्या होता है गाइस, इस फिगर में समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए यहाँ पर ये एक पलड़ा होता है लकड़ी का. इस पलड़े को हम ये दो धातु की जो पत्ती होती हैं, प्लेट होती हैं, उनसे उनको लगा देते हैं, और उसके ऊपर इस पेज के द्वारा इसको इस टेबल के ऊपर, लकड़ी की टेबल के ऊपर कस देते हैं. ये भी वुडन ब्लॉक होता है, वुडन ब्लॉक से इसको रोका जाता है. इस पेन को, इस पलड़े को, जो ये छोटा सा दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, इसको बाहर निकाल देते हैं और इस पर किसी वस्तु को रख देते हैं, इसको वाइब्रेट कर देते हैं, इस पलड़े को हिला देते हैं. हिलाने से क्या होता है कि जिस गति से ये हिलता है उसी के अनुसार T स्क्वायर इक्वल टू M, इसके वाइब्रेशन से इसकी मास को नाप लिया जाता है. तो ये तो हो गया गाइज आपका इनर्शियल मास. अब आगे चलते हैं.